This is a story from December 2020. This was the time when COVID was at its peak. I was in Chennai and I was in the hospital in Chennai with my father. My father was also admitted there. In the ICU of the hospital, there was a young boy, only 19 years of age, who had also admitted his father there. His father was simply a product manager in a small factory in Ghaziabad, and his mother was a housewife, and he was the only child. His father had had a severe case of lung deterioration after COVID, and they were looking for a lung transplant. They had been waiting for a lung for more than 3 months, and every day that they waited for the lungs, they had an expense of more than ₹1,00,000 because the father was on an ECMO machine, a heart-lung machine. Somehow, by borrowing money from here and there, they had been able to sustain their father for that duration. And on that particular day, there had been a successful lung transplant for his father. I can still remember the joy on his face. His name was Yash, the same name as my younger son. I remember how Yash looked when he came out of the when he came out of the ICU chamber. And almost 15 days after that, we were still in the hospital because my father was admitted. We saw his father coming out on a wheelchair, smiling, frail, weak, having lost a lot of muscle, but still smiling because he had got a new lease of life. Uncle and auntie, both of them were beaming with joy because one life had been saved thanks to a transplant. Ladies and gentlemen, that is the power of an organ transplant. It has the power to save lives. I and you, we have not been in that unfortunate place where we need organs. But you cannot imagine the plight of a person who is waiting months and months for one organ which can save their life or improve the quality of their lives. My name is Preeti Agarwal. I am the chair of the Gift an Organ chapter of Young Indians, Noida. As Young Indians, we have been doing a lot of work around youth leadership, nation building, and we have picked up many projects related to several things such as climate change, empowering youth in India, school education, entrepreneurship and innovation. One of the projects that we are very, very passionate about is spreading the message of organ donation, something that most Indians have not even heard of. We have with us Mr. Sushil Agarwal. Sir, welcome. Thank you so much for your time, and over to you. Thank you, Preeti. I can only clap for you for this beautiful start that you did. And it is not only heart-rendering, it is very emotional, and you had a very practical experience. Ladies and gentlemen, friends, my name is Sushil Agarwal. I'm chairman of Avro India Limited and also vice chairman of CII Western UP Zone. Today, me and Preeti, हम दोनों क्या बात कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्यों है, कैसे है, मीनिंग क्या है, किसको करना चाहिए, कौन कर सकता है, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों पता है, माँ प्रकृति ने हमें जो दिया है, जो पंचभूत में विलीन हो जाने वाला है, क्या हम उसको अपने जाने के बाद, यानी कि हम जब ब्रेन डेड हो या डेड वैसी हो जाएं, तो किस प्रकार से हम जाने के बाद भी दूसरों में अपनी जिंदगी को जी सकें और हमारे परिवार वाले उस खुशी का एहसास कर सके, और हमारे जाने के बाद हमें इस बात का एहसास हो कि हाँ, हमने जिंदगी में बहुत कुछ पाया और जो दे के गए वो कोई ऐसा गिफ्ट दे ही नहीं सकता। हम उससे बात कर रहे हैं। थैंक यू प्रीति फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टार्ट दैट यू डिड। आई वुड लाइक यू टू प्लीज एक्सप्लेन कि ये ऑर्गन डोनेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके आगे निटी-ग्रिटीज क्या है, ताकि हर एक की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। प्लीज गो अहेड प्रीति। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करना और जागरूकता पैदा करना इतना जरूरी क्यों है। आप सबको पता है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 130 crores, yet only 1000 organ donors come up and donate their organs every year. तो 130 crores में से सिर्फ 1000 लोग हैं जो हर साल इंडिया में ऑर्गन डोनेट करते हैं, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर कि ये नंबर बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इन कंट्रीज लाइक USA, the number of donors is 31.5 people per million.
In Spain, it is as high as 47 people per million. In India, we are only at 0.86 people per million. यानी 1 मिलियन लोगों में से less than 1% donates organs every year. इतने कम donors हैं इंडिया में. जबकि हमारे देश में number of brain deaths is very very high. The number of people who go through accident and have a brain death in India is one of the highest in the world. तो potential donors इंडिया में बहुत है, मगर बहुत कम लोगों में ये जागरूकता है और मतलब उन्हें पता भी है कि हाँ ऐसा कोई काम किया भी जा सकता है. प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स सराउंडिंग ऑर्गन डोनेशन. बहुत लोग ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड बहुत उल्टी सीधी चीजों में विश्वास रखते हैं. आज कोशिश करेंगे कि उन मिथ्स को हम लोग डिस्पेल कर सकें, ब्रेक कर सकें. एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. एवरी ईयर 5 लाख पीपल डाई because of organ failure, waiting for an organ transplant. आज अगर आप ऑर्गन रेसिपिएंट्स की वेट लिस्ट को निकालेंगे इंडिया में जो है, जो अपने आप को वेट लिस्ट करके कह रहे हैं कि हमें एक हेल्दी ऑर्गन की जरूरत है, आप वो नंबर अगर देखेंगे तो वो 5 लाख से भी ज्यादा है. इनफैक्ट कोविड टाइम्स में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन नंबर ऑफ डोनर्स वहीं के वहीं है, 1000 ही है. इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ये 1000 से कम हो गया है. इन द लास्ट 2 years हमने 1000 का नंबर भी नहीं टच किया. 800 से 900 लोग ही ऑर्गन डोनेशन कर पा रहे हैं. और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो रेसिपिएंट की वेटिंग लिस्ट है, जो 5 लाख लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इसमें बहुत बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, children who are born with some sort of a chronic disease. It could be that they need a kidney or a heart or a lung. और वो सालों साल वेट करते रहते हैं ऑर्गन डोनर के लिए. कई बार आईसीयू में बहुत महीने साल में बिताते हैं, लेकिन इन अ लॉट ऑफ केसेस उनको डोनर नहीं मिल पाता है. So that is why this topic is so important for all of us to discuss. प्रीति, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे आज ऑर्गन डोनेशन का वेट करें, 5 लाख लोग मर जाते हैं, तो कितने लोग इस समय पूरे देश के अंदर ऑर्गन डोनेशन के लिए वेट कर रहे होंगे? जैसा कि मैंने कहा सर, मोर देन 5 लाख पीपल आर इन द वेट लिस्ट. वेट लिस्ट का मतलब ये है कि इन लोगों ने एक्टिवली किसी हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को रजिस्टर कराया है और वेट लिस्टेड हैं कि जब भी इनको कोई भी डोनर सामने आता है और अपने ऑर्गन प्लेज करने की कोशिश करेंगे तो इनको प्रायोरिटी पे ऑर्गन दिया जाएगा. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रोनिक डिजीज है. मान लीजिए किडनी फेलियर है, जिसकी वजह से उन्हें कंटिन्यूअस डायलिसिस पे रहना पड़ता है, पर चूंकि इन लोगों ने रजिस्टर नहीं कराया इसलिए उनका नाम वेट लिस्ट में नहीं आता है. तो अगर हम वो नंबर भी जोड़ लें तो लाखों लाख लोग हैं जो ऑर्गन के वेट पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ हेल्दी डोनर्स की इतनी ज्यादा कमी है कि नहीं हो पाता. और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, जब भी ऑर्गन डोनेशन किया जाता है वी लुक फॉर अ साइज मैच बिटवीन द ऑर्गन्स. तो बच्चों के लिए एक डोनर जो होगा वो भी बच्चा ही होगा. और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं. इनफैक्ट 2 months back there was a case where a 2-year-old child fell from the first floor of his house and unfortunately there was a brain death because of a head injury. This little child, I mean, hats off to his parents, was able to save 8 lives. 8 लोगों की जान बचाई है, बच्चों की जान बचाई है उस छोटे बच्चे ने. क्योंकि आप जान के बहुत सरप्राइज्ड होंगे और मेरे ख्याल से ये मेडिकल मिरेकल ही है that a person who decides to donate his organs can save up to 8 lives, sometimes even 10 lives. How? मैं आपको बताती हूँ. हम क्या क्या डोनेट कर सकते हैं अपने ऑर्गन्स. हम अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं. So 2 किडनीज हैं, so we can save 2 lives. We can donate our heart, we can donate our liver, we can donate our lungs. Lungs भी कई बार 2 लोगों की जान बचाते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. We can donate intestines and we can donate pancreas. So this is how we can save 8 lives by donating our organs. Other than this, we can donate our tissues also. Tissues का मतलब क्या है? हम अपनी आंख की कॉर्निया डोनेट करते हैं. कॉर्निया डोनेशन मतलब क्या है कि बस आंखों के ऊपर जो छोटी सी झिल्ली है, सिर्फ वही आपकी यूज होती है. एंड एक कॉर्निया से, एक आंख के एक कॉर्निया से 3 आंखें बचाई जा सकती हैं. यानी आप आई डोनेशन करके यू कैन सेव 8 eyes, which means you can give light to 8 people, 6 people. तो सिर्फ अपने आई डोनेशन से आप 6 लोगों को रोशनी दे सकते हैं. हार्ट वॉल्व्स, बोन्स, स्किन, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं, उनको स्किन की जरूरत होती है, we can donate our skin.
ligaments. There is so much that we can donate, which improves the quality of people's life. इसको हम life saving donation नहीं बोलते हैं, but आप obviously सोचिए कि अगर किसी को आंखों की रोशनी मिल गई या किसी एसिड अटैक विक्टिम को स्किन मिल गया जिससे स्किन ग्राफ्ट होकर उनकी लुक बिल्कुल बदल गई, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रूव होती है. This is amazing, wonderful and unbelievable, प्रीति, क्योंकि मैंने भी कभी सुना नहीं कि हम अपने टिश्यूज, स्किन और ऐसी चीजें भी डोनेट कर सकते हैं. मैं एज्यूम करता हूँ 8 to 10 लाइव्स तो हम डायरेक्टली टिश्यू डोनेशन से शायद हम 30, 35, 40 लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है. Is that true? Absolutely, sir. One donor, if we find one healthy donor who is able to, from whom we can retrieve all organs and tissues, in that case, close to 30 to 35 lives can be saved or the quality of life can be improved. तो हम में ये शक्ति है, जैसा कि सर आपने शुरू में कहा, we all have the power to really create an impact in this world after we leave. हम लोग गलत चीजों पे फोकस रखते हैं, अपनी लेगेसी छोड़ने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल और पुण्य कमाने वाला तरीका एक ऑर्गन डोनर बन जाना है. छोटी सी मिथ जो इसके अराउंड होती है प्रीति, वो ये होती है कि हमें ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या हम जब अलाइव हैं तभी देना पड़ेगा, या फिर हम ब्रेन डेड हो जाए, या अगर जो किसी प्रकार से हार्ट फेल हो जाए तो किस स्टेज पे जाकर के देना होगा ये? ऑर्गन डोनर बनने की इच्छा आपको अभी while you are alive जाहिर करनी होगी. So you have to pledge yourself to become a donor while you are alive. And what does it mean to pledge yourself to become a donor? कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आपको हम जानकारी इसी वीडियो में देंगे, जहां पर जाकर आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं टू बिकम अ डोनर. आफ्टर यू रजिस्टर योरसेल्फ टू बिकम अ डोनर, उसके बाद आपको अपनी फैमिली के साथ ये जरूर डिस्कस करना है, बिकॉज इंडियन लॉ क्या कहता है? इंडियन लॉ कहता है कि इवन इफ यू आर अ रजिस्टर्ड डोनर, आफ्टर डेथ इफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स से नो फॉर द डोनेशन, देन योर ऑर्गन्स कैन नॉट बी रिट्रीव्ड. इनफैक्ट मैं आपको एक और आंकड़ा बताती हूँ, 85% पीपल हु आर रजिस्टर्ड डोनर्स do not end up becoming donors finally because their family refuses after death. Why? Because that person did not discuss that matter with their family beforehand. क्योंकि अगर हमने ये डिस्कस अभी कर लिया अपनी फैमिली के साथ, तो हमारी फैमिली हमारी लास्ट विश का सम्मान जरूर करेगी, they will honor our wishes. बट अगर हमने कभी डिस्कस नहीं किया तो आफ्टर डेथ इट इज अ वेरी सेंसिटिव मोमेंट, फैमिली बिकम्स वेरी रिलक्टेंट टू डोनेट ऑर्गन्स. सेकेंडली, डेथ का तरीका क्या हुआ? इफ देयर इज अ ब्रेन डेथ, व्हाट इज अ ब्रेन डेथ? ब्रेन डेथ का मतलब देयर इज जीरो एक्टिविटी इन आवर ब्रेन, which means it's not a coma. Coma में there is activity in the brain, but brain death में there is zero activity in the brain. When there is a brain death, the patient is on a life support system. For 2 to 3 days, the organs, the rest of the organs, the lungs, heart, liver, kidney, etc., can still be sustained. उस duration में उस इंसान के organs को retrieve किया जाता है, और within a few hours, हर एक organ की अलग life span होती है, but within a few hours, those organs can be used and can be transplanted into another person's body. तो ये तो हुआ अगर ब्रेन डेथ हुआ. ब्रेन डेथ के कारण क्या होते हैं? The most common way in which brain death happens in India is through a brain injury. इसलिए मैंने कहा एक्सीडेंट केसेस में, जहाँ एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं, वहाँ ब्रेन डेथ केसेस आर मैक्सिमम. The other way in which brain death happens is also through a brain stroke or some other sort of injury in the brain. Normal, these are the most common ways in which brain death happens. However, if you have a cardiac death, यानी heart function रुक गया है, which means, for example, heart attack हो गया, या if there is any other form of cardiac death, then Indian laws don't allow for organs to be retrieved. तो हमारे lungs, heart, kidneys वगैरह retrieve नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारे tissues फिर भी retrieve हो सकते हैं. So the eyes can still be donated, our skin, bones, heart valves. आपको पता ही होगा कि बहुत expensive surgery होती है जहाँ heart valves replacement होती है, because artificial valves are very expensive. So if we donate our heart valves, then it's a much more simpler, a healthier way in which heart patients can be saved. तो ये सारे donations even after cardiac death किए जा सकते हैं. मतलब मैं assume कर रहा हूँ कि number 1 brain death, number 2 accidental death, number 3 natural death,
इट कुड बी एनीथिंग, जैसे सोते सोते इंसान लेट अस से एक्सपायर हो गया, या फॉर वॉट एवर रीजंस, कभी कभी इट कुड बी हार्ट फेलियर, इट कुड बी ब्रेन, और इट कुड बी वॉट एवर इश्यूज फॉर दैट मैटर। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज हम सारे के सारे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर कि उसमें से वो क्या चूज करते हैं और क्या डिलीवर करते हैं। इज दैट ट्रू? Absolutely, 100%. Whatever be the form of death, if you are an organ donor, it is for the doctors to decide what organs they can retrieve. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ या बीपी का पेशेंट हूँ या मेरी एज बहुत ज्यादा है तो मेरे तो ऑर्गन्स इस लायक रहे नहीं कि मैं डोनेट करूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर वाज अ रीसेंट केस ऑफ एन 85-year-old मैन, 85 years के एक सज्जन थे who had a brain death and his heart was used for a transplant in India. तो आप कोई भी अपने मन में ये धारणा मत रखिए कि मेरा तो ऑर्गन अब इस लायक रहा नहीं कि कहीं यूज हो सके। वेदर यू आर अ हाइपरटेंशन पेशेंट, ब्लड पेशेंट, या आपके किसी भी फॉर्म से आप किसी भी एनी काइंड ऑफ अ मेडिकल हिस्ट्री दैट यू हैव, प्लीज डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम बिकमिंग एन ऑर्गन डोनर। कुछ भी केसेस हो, लेकिन एटलीस्ट आई डोनेशन एंड स्किन डोनेशन 100% केसेस में हो ही सकते हैं। तो जब हम अपने पास ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, उनमें आई डोनेशन के लिए सेपरेटली रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ऑर्गन डोनेशन में सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल। इनफैक्ट जब हम ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरते हैं, जब आप नोटो के वेबसाइट पे या किसी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेबसाइट पे भरेंगे, वहां पर आप चूज भी कर सकते हैं कि मुझे कौन से ऑर्गन्स डोनेट करने हैं। बट मैं आप लोगों से यही दरखास्त करूंगी कि व्हेन यू बिकम एन ऑर्गन डोनर, प्लीज चूज ऑल ऑप्शंस, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी डेथ के बाद हमारी कौन सी ऑर्गन्स यूज हो सकती हैं और कितने लोगों की जान बच सकती है। तो काफी लोग ऐसे हैं सर इंडिया में जो सिर्फ आई डोनेशन भी करते हैं। इनफैक्ट आई डोनेशन नंबर इन इंडिया इज मच बिगर, 16 to 20 लाख आई डोनेशंस हैपन एवरी ईयर इन इंडिया। लेकिन बाकी ऑर्गन्स डोनेट नहीं कराना चाहते हैं, और उसके कारण बहुत मिथ्स हैं, बहुत लोगों के मन में हिचक होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा कॉमन चीज आपने भी सुना होगा सर कि people feel that if my organs are donated, then my body will be mutilated organ donation के through. But that is not true. Whenever your body goes for an organ donation, there is only a 2-inch incision that is made in your body, which is under your in your chest area. वहाँ पर एक 2 इंच का incision होता है, organs वहीं से retrieve होते हैं और उसको stitch up किया जाता है। आपकी बॉडी देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहाँ इस बॉडी में ऑर्गन डोनेशन किया गया है, इस बॉडी से ऑर्गन्स रिट्रीव किए गए हैं। इवन आई डोनेशन में कोई आपकी आंखें देख के नहीं कह सकता कि आई डोनेशन हुआ है, बिकॉज सिर्फ एक झिल्ली निकाली जा रही है, योर आईज लुक जस्ट नॉर्मल। इसी तरह के बहुत सारे देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पीपल चूज टू ओनली डू स्किन डोनेशन और ओनली आई डोनेशन, बट माय रिक्वेस्ट विल बी प्लीज गो अहेड and it is up to the doctors to decide what they will retrieve, what is in a healthy condition. This is a wonderful revelation, प्रीति, जो आपने बताया। ये शायद जानकारी मुझे क्या किसी और को भी नहीं होगी, ये बहुत कम लोगों को पता होता है जो आपने भी बताया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर रेवलेशन। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि लेट अस से कोई इंसान मर गया है, तो उसके बाद में कितने घंटे तक ऑर्गन रिट्रीव किया जा सकता है, और उसके लिए क्या हॉस्पिटल रश करना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, पुलिस को बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए? Yeah, that's a very important question, sir, that you just asked. After brain death के बाद the body can be sustained on our life support system for 2 to 3 days. So all our organs, whether it is heart, liver, lungs, everything is on life support for 2 to 3 days. That is the time period which is available to retrieve organs. However, the sooner we retrieve, the better is the quality of the organ. So जितनी जल्दी हम लोग retrieve करते हैं, उतनी जल्दी उतना अच्छा quality का organ होता है और life saving होता है। Now, very importantly, brain death 90% of the cases hospital में ही होता है, क्योंकि आपके मान लीजिए एक्सीडेंट विक्टिम है या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, वो हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाया जाता है और वहां पर उन्हें असेस किया जाता है कि दिस इज अ ब्रेन डेथ केस और उनको लाइफ सपोर्ट पे डाला जाता है। घर में अगर फॉर एनी अनफॉर्चुनेट रीजन अगर ब्रेन डेथ की सिचुएशन होती है, प्लीज गो अहेड एंड गेट द पेशेंट एडमिटेड इन एनी हॉस्पिटल नियर बाय and let the doctors there know that that you are keen to donate organs of your near and dear ones. The doctors will coordinate with, there is a body called the
State Organ and Tissue Transplant Organization, SOTO, SOTTO. The hospital will coordinate with the SOTO. The SOTO will send a team of doctors from another hospital. So किसी और hospital से team of doctors आते हैं, वो patient को assess करेंगे कि which organs are in a healthy condition and can be retrieved, and they will be the one retrieving the organs. Now ऐसा क्यों किया जाता है कि दूसरे hospital से doctors आते हैं? This is to prevent any cases of organ trading. क्योंकि पहले, अभी तो ये बहुत रेयर हो गया है, बट पहले, आज से कुछ साल पहले जब लॉज इतने वेल डिफाइंड नहीं थे, तब ऑर्गन ट्रेडिंग भी होती थी कि जिस हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं वहीं के डॉक्टर्स ऑर्गन रिट्रीव कर रहे हैं, एंड देन देयर यूज्ड टू बी केसेस ऑफ ऑर्गन सेल आल्सो. बट नाउ द लॉ हैज बिकम वेरी स्ट्रिंजेंट. द टीम दैट टू विजिट टू रिट्रीव ऑर्गन्स इज डेजिग्नेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑर्गन एंड tissue transplant organization. They retrieve the organs, and once the organ has been retrieved, then who will get the organ? You don't have any control over it. So the state, and this is also to prevent any organ trading. It is a very very tightly controlled system by the government, where the organ goes to the person who is number 1 on the waiting list, and the waiting list is as per the date on which the person became registered. It is right now a very transparent process. हमें क्या करना है? हमें सिर्फ हॉस्पिटल डॉक्टर को बताना है कि हाँ, हम ऑर्गन डोनर बनना चाहते हैं. उसके बाद डॉक्टर्स खुद कोऑर्डिनेट करेंगे. इसमें एक पुलिस का भी रोल होता है. पुलिस भी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है. वो भी डॉक्टर्स कोऑर्डिनेट करते हैं पुलिस के लोकल SHO या SP के साथ. हमारा काम सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करना है. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अगेन वंडरफुल जो आपने बात बताई, क्योंकि इसके बारे में हमेशा बहुत बड़ी मिथ बनी रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ लेके भागे, बॉडी को लेके घूमे. और नॉर्मल लोग, हर इंसान सोचता है एक तो ग्रीफ में है, परेशान है, दुखी है, रो रहा है, ऊपर से आज में बहुत सारे पचड़े, बोलता है गवर्नमेंट के, पुलिस के इस लफड़े में कौन पड़ेगा. तो क्या मैं सेफली एज्यूम करूं कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देने से मात्र वो सारा हैंडल कर लेंगे और हमें सिर्फ पैसिवली उसको वॉच करना है, और अगर जो पेशेंट बच जाता है, बहुत ही अच्छी बात है, ब्रेन डेड हो गया या एक्चुअली वो डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, तो उस सूरत में हॉस्पिटल विल कोऑर्डिनेट एंड गवर्नमेंट एजेंसी विल टेक ओवर. वो हमको हैरेसमेंट नहीं करेगी. इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली 100%. आप लोगों को सिर्फ एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन करना है, और उसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है. चाहे वो पुलिस से बात करनी हो, हॉस्पिटल से बात करनी हो, लोकल अथॉरिटी से बात करनी हो, वो सारी कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल करता है. आई डोनेशन के केस में सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई डोनेशन चूंकि कार्डियक डेथ से होता है, कि जैसे आपने कहा घर पे ही डेथ हो गई और कई बार हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जाता है. आई या स्किन डोनेशन के केस में वहां पर आप किसी भी लोकल आई बैंक को फोन कर सकते हैं. हम आपको वो लिंक्स भी दे देंगे कहाँ से आप लोकल आई बैंक का नंबर निकालें. विदिन 10 और 15 मिनट्स आपके घर में आई बैंक से कोई आएंगे, एंड द कॉर्निया रिट्रीवल प्रोसेस इज हार्डली, इट टेक्स 5 और 7 मिनट्स. 5 या 7 मिनट में घर पे बैठे बैठे ही कॉर्निया रिट्रीव हो जाती है. और आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आईज ड्राई ना हो जाए. मतलब जैसे आंखें अगर खुली हैं तो बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, कि अगर आईज ड्राई हो जाए तो कॉर्निया रिट्रीवल में प्रॉब्लम होती है. अदर देन दैट द आई बैंक पीपल विल कम, दे विल रिट्रीव इट एंड दे विल लीव द हाउस. यू विल नॉट इवन हैव टू डू एनीथिंग देयर. This is wonderful. I'm so glad प्रीति आप जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, शायद मुझे लगता है कि आज तक हमें कभी किसी ने बताया नहीं, हमने कभी किसी से पूछा नहीं है. सबसे ज्यादा बड़ा डर इस बात को लेके होता है कि हमारे ऑर्गन की डोनेशन की ट्रेनिंग, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग होगी, कहीं ना कहीं बेच देंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, गलती हो जाएगी, हेराफेरी हो जाएगी. इस बात का हमेशा डर रहता है. इस चक्कर में इंसान कई बार डोनेट नहीं कर पाता है. लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया, मैं ये सेफली एज्यूम और मान के चल रहा हूँ कि इस सूरत में कहीं पर भी कोई ट्रेडिंग का, कोई न्यूसेंस का, कोई इस प्रकार का चक्कर नहीं है. Absolutely नहीं है. In fact, it is illegal to express, to anyone कि मैं अपना organ donate कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनको दिया जाए. As per the Indian law, you cannot express कि आप organ किसे देना चाह रहे हैं या किन्हें देने जा रहे हैं. वो 100% government decided होता है और उसको बड़ा मतलब secretive रखा जाता है. प्रीति, मेरा एक सवाल ये भी है, लेट अस से आज मुझे पता लगा मेरी वाइफ को या मुझे जैसे लेट अस से कोई लीवर का इशू है या कोई किडनी का इशू है, कोई भी है, और वो मुझे डोनेट करना चाहे, तो क्या इस प्रकार से डोनेशन हो सकता है फैमिली मेंबर्स के बीच में? जी बिल्कुल. लाइव डोनर्स भी होते हैं. मतलब
स्पेशली फॉर किडनी एंड लिवर। तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां मान लीजिए मेरे फादर या मदर अनवेल हैं, मैं अपना किडनी का पार्ट डोनेट करना चाहती हूँ क्योंकि किडनी में मैं अपना एक किडनी डोनेट करना चाहती हूँ, और सिमिलरली या लिवर भी हम डोनेट कर सकते हैं। पार्ट ऑफ द लिवर कैन बी टेकन अवे बिकॉज द लिवर विल रीजेनरेट। लिवर बाय इटसेल्फ एज एन ऑर्गन रीजेनरेट्स। तो इस केस में व्हाट डज द इंडियन लॉ से? इंडियन लॉ कहता है कि आपके नियर रिलेटिव आर एलिजिबल टू डोनेट देयर ऑर्गन्स टू यू। नाउ नियर रिलेटिव्स की डेफिनेशन में कौन कौन है? स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स व्हिच मींस ब्रदर और सिस्टर, ग्रैंडचिल्ड्रन, ग्रैंडपेरेंट्स, इनको नियर रिलेटिव्स की तरह डिफाइन किया गया है। एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ वी वांट we can always donate organs to our near relatives. And which organs can we donate? Kidney and liver. तो इसमें क्या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स नहीं आते इस परिभाषा में? फ्रेंड्स नहीं आते हैं, तो एज पर इंडियन लॉ फ्रेंड्स नहीं, नियर रिलेटिव्स को ही सिर्फ ये दिया गया है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में आफ्टर टेकिंग एन एनओसी फ्रॉम द पुलिस, फ्रेंड्स ने भी ऑर्गन मतलब किडनी और लिवर डोनेट किया है, लेकिन उसमें इंटरव्यू लिया जाता है फैमिली मेंबर्स का और फ्रेंड का और जो रेसिपिएंट हैं, जो पेशेंट हैं उनका, और पुलिस को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बस ये पुलिस क्या डिटरमिन करती है कि इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो नहीं है, तो वो इफ द पुलिस इज कन्विंस्ड कि इस डोनेशन में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो भी अलाउ किया जाता है। I'm so glad, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि हमारे देश में हाईएस्ट स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है एथिकल मॉरल वैल्यूज के हिसाब से, कि जिसमें किसी प्रकार से किसी को मारा ना जाए, मिसयूज ना किया जाए ऑर्गन को, और जो जेन्युइनली डोनेट करना चाहते हैं और जो जेन्युइनली रिसीव करना चाहते हैं उनका मैच करके उन तक पहुंचाया जा सके ताकि उनको बचाया जा सके। इज दैट ट्रू? बिल्कुल सर। इनफैक्ट 2014 से पहले काफी सारा ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड बैड प्रेस भी था, मीडिया कवरेज भी बहुत अच्छी नहीं मिलती थी इसी कारण से, क्योंकि इस तरह के केसेस होते थे। बट सिंस 2014 जब ऑर्गन डोनेशन लॉज इंडिया में बहुत क्लियरली लिखे गए और इम्प्लीमेंट किए गए, 2014 ऑनवर्ड्स ऐसे केसेस मेरे नॉलेज में तो कोई भी नहीं है, और मेरे ख्याल से अक्रॉस इंडिया बहुत रेयर हैं जहां ऑर्गन ट्रेडिंग की जा रही है। I'm so glad प्रीति, आज इतनी बड़ी क्लैरिटी आपने दी है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं 60 प्लस का हूँ, लेकिन आज से करीब 21 साल पहले 2000 में ही मैंने अपनी वाइफ, बच्चों को, सबको, फैमिली मेंबर्स को दिल खोल के एक नहीं 100 बार बार एक डोनर कार्ड बना करके ये कहा कि मेरे साथ कभी भी किसी प्रकार का हादसा हो जाए तो समझो तो मुझे कुछ नहीं पता होगा, लेकिन आप मेरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे प्रीति ने कहा, जो हेल्दी है, अनहेल्दी है, सारे के सारे डोनेट कर दें। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक भी कहा कि मेरी बाकी की बची हुई बॉडी को जो भी है आप मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दें ताकि वो लर्निंग प्रोसेस से गुजर जाए, और उसके बाद में कुछ बचता है तो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर डाल करके उसको अपना जो भी करना है करके, और भगवान करे जैसे भी है उसको अपना कहते हैं गंगा जी बहा दे, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जाने के बाद अपने जीवन को दूसरों में जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को कहीं ना कहीं एहसास हो कि सुशील अग्रवाल आज भी किसी न किसी रूप में किसी के दिल, किसी के पास जिंदा है। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों, हमारे देश में 130 करोड़ की जनता है, कितने लोग जा रहे हैं हर पल, लेकिन आज जैसे प्रीति ने बात कही कि 5 लाख लोग तो वो हैं जो जनरली वेट लिस्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता और कितने लोग हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी उनकी आंखों में उजाला था ही नहीं, उनको फूल का कलर क्या होता है पता ही नहीं। क्या हमारा एक इंसान होने के कारण ये फर्ज नहीं बनता कि जैसे प्रीति ने इतनी अच्छी बात बताई कि घर पे बैठे बैठे ही बिना कोई टेंशन के, आपको बिना कोई कॉस्ट के, आपका सिर्फ कॉर्निया की झिल्ली निकाली जाती है, आंख नहीं निकाली जाती, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि आई बॉल को निकाल लिया जाएगा। इट इज नॉट ट्रू। और अगर जो ऐसी बात है और आप अपनी आंखों से दूसरों के अंदर रोशनी ला सकते हैं और वो जीवन भर को देख सकते हैं, ओ माय गॉड, मैं समझता हूँ कि इसका एहसास ये करिएगा, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके काले और दिन के उजाले में कहीं घूम के देखिएगा, देखिए कितनी तकलीफें आती हैं। अगर जो वो जिंदगी हम दूसरों को दे सके तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दान, महादान कोई हो नहीं सकता। एक मिथ मैंने देखी है प्रीति, लोग कहते हैं कि अंग दान देने से अगले जन्म में हमें अंग नहीं मिलेंगे। मेरा एक छोटा सा इसमें एक आंसर है, बल्कि मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ, आंसर भी दे रहा हूँ। अगर ये बात सत्य है तो इस जीवन में फिर हमें अन्न का दान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अन्न का दान देंगे तो अगले जन्म में हमें अन्न दान भी नहीं मिलेगा। तो अन्न दान दे करके हम मानते हैं कि अगले जन्म में अन्न दान मिलेगा, तो इस साल में, इस समय, इस जन्म में अंग दान दे देंगे तो अगले जन्म में अंग क्यों नहीं मिलेंगे? इस पर कुछ आप कहना चाहते हैं? बहुत बहुत खूबसूरती से आपने ये बात कही अंकल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। ये एक मिथ है, मैंने सुना है,
लोगों का ये कहना कि इस जन्म में अगर हम अपना अंग दान कर देंगे तो अगले जन्म में वो अंग हमें नहीं मिलेगा, बट एब्सोल्युटली व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो उस लॉजिक से तो हमें इस जीवन में कुछ भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम करेंगे, पैसे दान करेंगे अगले जन्म में पैसे नहीं मिलेंगे, अन्न दान करेंगे तो अगले जन्म में अन्न नहीं मिलेंगे। तो ये सारे मिथ्स आई थिंक जितना एजुकेशन होता है, अवेयरनेस होता है, लोगों के दिमाग से निकलते ही जाते हैं। और होपफुली आगे के सालों में जो आपने इतना अच्छा, इतना पैशनेटली ये मैसेज दिया है कि हाउ व्हाट इज बेटर वे ऑफ लीविंग आवर लेगेसी। अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो दूसरों को जीवन दान देकर जाएं, इससे ज्यादा खूबसूरत तरीका हो ही नहीं सकता है। तो सर, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर योर कमिटमेंट टू दिस, एंड आई होप आपके वजह से और लोग प्रेरित होते हैं और लोग इंस्पायर होते हैं, एंड दे आल्सो कम फॉरवर्ड। इट डजंट मैटर व्हाट एज यू आर, इट रियली डजंट मैटर। हमें अपने जीवन का कब कितने साल रहना है इस दुनिया में हमें नहीं पता है, पर हाँ, हमारे जाने के बाद हम अगर उनको जीवन दान दे सके तो इससे ज्यादा पुण्य का काम मुझे नहीं लगता कुछ। सो स्वीट प्रीति, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं भी अपने सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ, आपने जीवन में लेटर से पैसा कमाया, शोहरत पाई, जो भी पाया, और आपने अगर जो कुछ बांट दिया तो क्या बड़ी बात है। समाज ने दिया, समाज को वापस दे दिया, लेकिन जो माँ ने दिया, प्रकृति ने दिया, और हम एक छोटे से बैक्टीरिया से इतने बड़े इंसान बन गए। और फिर सबसे बड़ी बात, एक दिन पंचभूत में जब विलीन हो जाएंगे तो विलीन हो जाएंगे हमेशा के लिए, और कभी रहने वाले भी नहीं है। तो क्यों नहीं हम जितना दान भी दे लें, लेकिन अगर जो अपने शरीर के अंगों का दान दे करके दूसरों के अंदर अपनी जिंदगी जी सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, किसी को कितना भी पैसा दे दो, लेकिन जीवन दान से बड़ा दान नहीं होता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आज अगर जो आपके मन में किसी प्रकार की भ्रांति है, तो आप चाहे जिस प्रकार के धर्म को अपनाते हो, आप वापस जाके उसमें पढ़ के देखिएगा, समझ लीजिएगा कि इस प्रकार के दान का महत्व कितना बड़ा होगा। और आप खुद भी दिल में सोचिएगा, अगर जो आप दूसरों के दिलों में रह सके, दूसरों के शरीर में आप रह सके, तो आपको कितना अच्छा लगे। वो भी कब, जब हम चले गए, जब हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया और हमने मिट्टी में मिल ही जाना है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको करें। प्रीति, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे कुछ वीडियो, मेरे को पता लगा था आप कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को प्लीज शो करें। एक वीडियो मैं भी दिखाना चाहूंगा ऑर्गन डोनेशन के बारे में, कि किस प्रकार से एक बिटिया को ऑर्गन डोनेशन हुआ था, एक रियल स्टोरी थी, उसके बेसिस पे इस वीडियो को बनाया गया है। तो मैं भी उसको शेयर करूंगा, और हम सारे दर्शकों को मैसेज देके ये कहना चाहेंगे कि भगवान करे 130 करोड़ लोगों के देश में आज हमारे देश में जितने लोगों को ऑर्गन डोनेशन की जरूरत है, वो तो हम पूरा ही करें, लेकिन क्या हम पूरे विश्व की जरूरतों को पूरी कर सकते हैं? क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं कि भारत तो बहुत विशाल देश है, भारत की लेगेसी, हमारे यहाँ हजारों सालों का कल्चरल वैल्यूज, और हम पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं, तो उस हिसाब से हम इस प्रकार से बन जाएं कि पूरे विश्व को हम अपने अंग का दान दे करके पूरे विश्व को अपना हिस्सा बना ले। कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत ही नेक ख्याल है सर ये आपका। क्यों सिर्फ भारतवासियों के लिए, भारत के बाहर भी, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सब तो ह्यूमंस ही हैं, चाहे किसी कंट्री को बिलोंग करें, किसी रिलीजन, किसी रेस को बिलोंग करें। बहुत ही नेक ख्याल है सर आपका। थैंक यू प्रीति। मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन सी वीडियो आप हमें दिखाने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो उससे इंस्पायर हो सके। मैं भी एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा, प्लीज गो अहेड, आई एम वेटिंग फॉर दिस। So I will share a video जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा अबाउट ऑर्गन डोनेशन, और मैं डोनर्स का वीडियो आपको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा हिम्मत का काम है जब आपकी लाइफ में इतना बड़ा धक्का, इतना बड़ा सदमा लग रहा है, आपके रिश्तेदार कोई आपसे जुदा हुए हैं, उस समय इतना बड़ा डिसीजन लेना कि मैं इनका के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और इतनी हिम्मत बहुत लोगों ने दिखाई है। क्या उनके मन में उस टाइम क्या फीलिंग्स होते हैं, और आज जब उन्हें पता है कि हाँ, मेरा बेटा या मेरी वाइफ किसी और के थ्रू इस जीवन में आज भी जी रही है, तब उन्हें कैसा महसूस होता है, ये इस वीडियो में नजर आएगा। तो मैं आपको ये वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगी। प्लीज गो अहेड। रोज सुबह उठ के हम मांगते थे सांस में कि एक दिन इसकी लाइफ को हम दे पा रहे थे किसी तरह से। We came to know that it was liver cirrhosis. We all were totally shattered. The feeling was disbelief that it couldn't happen.
maybe there was some mistake in the ultrasound. It couldn't happen to me. Life was going so smooth and just everything came down. आदमी आर्थिक रूप से, mentally, हर तरह से वो torture होता है. I got myself registered at a number of hospitals. Some doctors told me blankly that it's not going to happen. दोनों बच्चों ने मेरे ने आके समझाया कि मम्मी हम आपके सामने हैं, हम आपकी खुशियां पूरी करेंगे, प्रणय नहीं है लेकिन हम प्रणय बन जाएंगे, चिंता नहीं करो, लेकिन दूसरों का जो भला होगा कुछ आ गया माइंड में कि चलो हमें नहीं खुशियां मिली तो औरों को मिलेगी, बस इसी मनोवृत्ति को लेकर के मैंने हाँ कर दी थी। मैं डॉक्टर को बोला आज का दिन मेरे अनमोल को सेव रखना, आज संडे है, आज का दिन इसे बचा के रखना किसी कीमत पर। डॉक्टर बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं कहा मैं इसके ऑर्गन डोनेट करूंगा, आज संडे, आज कुछ नहीं हो पाएगा। The minute I said a yes to the doctor, it was as though the ICU had come alive. That feeling was so good inside me when I went home that night, that even in death he has helped people and gone. I am 1 year old. I'm 9 months old. I'm 6 months old. I'm 1 year old. I am 2 years old. Thank you, Preeti. I want to clap for you for this beautiful video because it's very emotional. आपने दिखाया कि किस प्रकार से लोगों ने अपनी आप बीती शेयर करी कि उनको कैसे ऑर्गन मिला और किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं जिस एज में भी हूँ लेकिन मैं 9 मंथ 6 मंथ ओल्ड हूँ क्योंकि मुझे इस समय ऑर्गन नहीं मिला था, मैं जिंदगी जी रहा हूँ, नई जिंदगी जी रहा हूँ। वंडरफुल, इट्स वेरी इमोशनल एंड वेरी टची एंड गॉड ब्लेस यू आई कैन से। मैं भी एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ प्रीति, क्योंकि मेरे बहुत नजदीक है, तो मुझे लगा कि मैं आज सारे दर्शकों को, मेरे सारे दोस्तों को, भाइयों को, मेरे सारे देशवासियों, प्रकृति के इस नियम को कहीं ना कहीं बात मैसेज दे दे हम दोनों मिल करके कि प्लीज प्लीज हम अपने लिए नहीं, हमारे सारे, मैं भगवान करे कभी ऐसा ना हो कि हमें किसी की जरूरत पड़ जाए, लेकिन आज हम कॉन्शियस हैं, एक्टिव हैं, हमें समझ में आ रहा है, मेंटली बैलेंस्ड हैं, हम सब मिलजुल करके क्यों ना एक अच्छा इकोसिस्टम बना सकते हैं जहां पर एक दूसरे की मानवता के नाम से मदद करें। तो मैं आपसे एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं प्रीति, प्लीज लुक एट दिस। नंदिता, तुम तैयार नहीं हुई, वो लड़की आने वाली होगी। मुझे नहीं मिलना उससे। क्या हुआ? ये मेरा फैसला नहीं था, तुम्हारे बेटे का था। और तुम्हारा भी। नंदिता, अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो मना कर देती। हाँ, ताकि दुनिया के सामने मैं बुरी बनती। क्या तुम्हें अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं? ये उसका अपना फैसला था और मेरा कोई हक नहीं था। नंदिता, अगर तुम नहीं मिलोगी तो तुम्हारे बेटे का दिल दुखेगा। रिया जी,
आपके लिए। जब चाहे अपने बेटे से बात कर सकती हैं। दोस्तों, आपने देखा कैसे वो बेटा चला गया। जाने के बाद उस बिटिया के अंदर उसने अपने जीवन को दे दिया और आज मां महसूस कर सकती है उस बेटे के माध्यम से। क्या आपको नहीं लगता ये सब हम संभव कर सकते हैं? मुझे जब चेतना आई इसके बारे में, करीब 12 साल मुझे हो गए हैं। मेरे ख्याल में मैंने 500 से ज्यादा सेशंस किए होंगे पूरे देश में, और हर बार इस वीडियो के साथ साथ मैंने 15 मिनट का सेशन इसी बात को लेकर किया कि ऑर्गन डोनेशन करें। मैं बिजनेस करने नहीं जाता, मैं लोगों को इंक्लूड करने जाता हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करने जाता हूँ। मुझे नहीं पता दोस्तों कितने अनगिनत लोगों ने, लेकिन मेरा ये एजम्पशन है कि करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को मैंने प्लेज करवाया होगा। हाथ जोड़ के विनती करी होगी, मैंने उनसे ओथ ली होगी कि हाँ, क्या आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। जो लोग पहले एक हाथ नहीं उठाते थे, मैंने देखा 99.9% बल्कि 100% लोगों ने हाथ उठाए और कहा हम डोनेट करना चाहते हैं। हमने हाथों हाथ उनको रिसोर्सेस का नोटों की साइट पे जाके कैसे रजिस्टर करना है, या हॉस्पिटल्स में बहुत सारी जगह है, वो हमने उनको रिसोर्सेज दिए, लोगों ने रजिस्टर करे, फिर बताया, भेजा, फिर वो एम्बेसडर बन गए। उन्होंने बहुत लोगों को बोला। मैं करीब 30 से 35 कॉलेज में जाता हूँ, हर बच्चों को इसके बारे में समझाता हूँ, और बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने चार्ज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर चिंता मत कीजिएगा, हम ऑर्गन डोनेशन करेंगे। मुझे लगता है हम सबको मुहिम खड़ी करनी है। आज प्रीति इतनी पैशनेटली काम कर रही है। मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक जज्बा है। क्यों पता है, जब मुझे अपने खुद की खुशी का एहसास होता है तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ जिनकी इस समय झोली में आंसू के अलावा कुछ है नहीं। क्या हम उनके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं? वो भी कब? जाने के बाद। किसी में जी सकते हैं कब? जाने के बाद। प्लीज कर डालिएगा, ये मेरी आप सबसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। हम आप लोगों को रिसोर्सेज नीचे प्रोवाइड करें लिंक के अंदर कि कहाँ का आपको रजिस्टर करना है। मैं अपना डोनर कार्ड जो मेरा है, मैं वो भी आपको इसके अंदर दिखाऊंगा, वीडियो के अंदर या कहीं ना कहीं इसके अंदर दिखाऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आपको इस बात का भरोसा विश्वास आए कि हाँ, हम सबका मकसद यही है कि हम मानव हैं, मानव तक ले जाएंगे। धन्यवाद। प्रीति, वांट टू से समथिंग? I want to say the same thing that sir you just said. हम लोग सब मानव हैं, और हमें जो ये शरीर मिला है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं मिला है, ये दूसरों के लिए मिला है। तो अगर हम जाते जाते दूसरों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जो हमारी उस समय क्षमता होगी, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। आज इतनी खूबसूरती से सर आपने बताया कि किस तरह आपने इतने लोगों में जागरूकता पैदा करी है और लोगों ने सामने आके हाँ बोला है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखकर आपके अंदर भी, आप सबके अंदर भी जरूर ये इच्छा जाहिर हुई होगी कि मैं ऑर्गन डोनर बनूं, या कम से कम इसके बारे में सोचूं और इसकी तरफ कुछ न कुछ पता करूं, जिससे कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी आपके मन में हेजिटेशन हो, तो प्लीज ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे हम लोगों के पास, या जो लिंक्स आपके नीचे हम लोगों ने दिए हैं, वहां जाके पता कीजिए, ताकि सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिले और उसके बाद आप बेहिचक ना सिर्फ खुद डोनर बने, बल्कि अपने कम्युनिटी में, अपने लोगों आसपास जितने लोग हैं, उनको भी प्रेरित करें कि वो भी ऑर्गन डोनर बने। मेरी भी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इससे ज्यादा पुण्य का काम नहीं हो सकता। प्लीज आगे बढ़िए और ऑर्गन डोनर बनिए। थैंक यू प्रीति।
लास्ट में ये कहूंगा दोस्तों, मेरा पूरा परिवार डेडिकेटेड है, कमिटेड है, समझा रखा है। मैंने पूरे परिवार की प्लेजिंग करवा रखी है। और फिर ये साथ लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, भगवान करे जितनी बार जन्म लूं हर बार अपना ऑर्गन डोनेट करके किसी के काम आऊं, बस यही मेरा एक सपना है, ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद।